ایک وقت کا قصہ ہے، جامپور گاؤں میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ اپنے وزیروں کے ساتھ جا کر گاؤں کے لوگوں سے پیسے وصول کیا کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی بادشاہ سے بہت تنگ تھے۔ بادشاہ کے دو خاص وزیر تھے جو اکثر بادشاہ کو ان کاموں سے روکتے رہتے تھے۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ برا نہ مانو تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں وزیر بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم تو میرے خاص وزیر ہو۔ بادشاہ سلامت، ہمارے گاؤں کے لوگ بہت غریب ہیں اور محنت کش بھی ہیں۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان پر ظلم کرنا بند کر دے تو ان گاؤں والوں کو سکون سے روزی کمانے کا موقع مل جائے گا۔ جی بادشاہ سلامت، میں بھی یہی بات کہنے والا تھا۔ تم دونوں اپنا منہ بند کرو اور اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ یہ گاؤں والے ہیں ہی سی قابل، اور ہاں آئندہ اگر ایسی بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم دونوں میرے خاص وزیر ہو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی گاؤں میں میٹھے نام کا لڑکا اپنی بیوی نصیبو کینچی کے ساتھ رہتا تھا۔ ارے میٹھے، میں نے سنا اس گاؤں کا بادشاہ بہت ظالم ہے۔ وہ گاؤں کے سب لوگوں سے پیسہ وصول کرتا ہے اور جو اسے پیسہ نہ دے وہ ان پر ظلم کرتا ہے۔ ہاں بیگم، تو ٹھیک بول رہی ہے، میں نے بھی بہت سے گاؤں والوں سے یہی بات سنی ہے۔ میٹھے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں بادشاہ ہم تک نہ پہنچ جائے اور ہم سے بھی پیسے زبردستی نہ مانگنے لگ جائے۔ پر بیگم، میں ایسی نوبت آنے ہی نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے ہی میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اس سے نوکری مانگوں گا کہ میں آپ کو گاؤں والوں سے پیسے وصول کر کے دوں گا۔ ہاں میٹھے، پھر تو بادشاہ بھاگ کر تجھے کام پہ رکھ لے گا۔ جا میٹھے، جا بادشاہ کے پاس جا۔ پھر میٹھا گھر سے نکلتا ہے اور بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ ہاں لڑکے، تم کون اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس نوکری کی تلاش میں آیا ہوں۔ میری اس گاؤں میں بہت دہشت ہے، لوگ میرا نام سنتے ہی تھر تھر کانپتے ہیں۔ مجھے آپ کام پر رکھ لیں، میں لوگوں سے پیسے وصول کر کے آپ کے پاس لایا کروں گا۔ واہ لڑکے، تم تو بہت قابل اور ہوشیار لگ رہے ہو، مجھے ایسے ہی بندے کی تلاش تھی۔ بادشاہ میٹھے کو کام پر رکھنے کی حامی بھر لیتا ہے۔ میٹھا بہت خوش ہو جاتا ہے اور خوشی خوشی گھر آ کر یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سناتا ہے۔ یہ سن کر نصیبو بھی خوش ہو جاتی ہے۔ واہ میٹھے، یہ تو تجھے بہت خوشی کی خبر سنائی ہے۔ اب تو بس کل سے کام پہ لگ جا اور دل لگا کے لوگوں سے پیسے وصول کر۔ بیگم بس تو دیکھتی جا میں کیسے لوگوں کو دھمکا کر ان سے پیسے وصول کرتا ہوں۔ میٹھے، ویسے میرے ذہن میں ایک بہت کمال کا آئیڈیا ہے۔ دیکھ میٹھے، جب تو بادشاہ کا نام لے کے لوگوں سے بھتہ لے گا تو گاؤں کے لوگ ڈر کر تجھے فوراً پیسے دے دیں گے۔ بیگم تو کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ صاف صاف بول۔ میٹھے، تجھے جو بھتہ ملے گا آدھے پیسے ہم رکھ لے گے اور آدھے بادشاہ کو دے دیں گے۔ نصیبو کی یہ بات میٹھے کو بہت پسند آتی ہے۔ پھر اگلا دن ہوتا ہے اور میٹھا ایک دکان پر آتا ہے۔ چل میرا پت، اس مہینے کا بھتہ نکال، اگر ذرا بھی چوچا کی تو تیری خیر نہیں۔ پر بھائی تم کون ہو اور اتنی بدماشی کیوں دکھا رہے ہو؟ میں بادشاہ کا نیا ملازم ہوں، بادشاہ نے مجھے اس مہینے بھتہ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ دکاندار ڈر جاتا ہے اور میٹھے کو پیسے دے دیتا ہے۔ میٹھا وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر آ کر آدھے پیسے نصیبو کے پاس رکھوا دیتا ہے اور آدھے پیسے لے کر بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے اور بادشاہ کو پیسے دے دیتا ہے۔ بادشاہ پیسے لے کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ واہ لڑکے، تم نے تو دل خوش کر دیا، آج سے تمہاری ملازمت پکی۔ جبکہ دوسری طرف اسی گاؤں میں بٹو نام کا لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ ابو، میں تو بادشاہ سے بہت تنگ ہوں، اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بادشاہ کا ملازم بھتہ مانگنے آ جاتا ہے۔ بیٹا بادشاہ بہت ظالم ہے، اگر وہ بھتہ مانگے تو اسے دے دیا کر۔ پر بیگم اور ابو، اگر میں نے انہیں بھتہ دے دیا تو بہت نقصان ہوگا، اس طرح تو میرا سارا منافع وہی لے جائیں گے۔ خیر، آپ لوگ پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ پھر اگلا دن ہوتا ہے، بٹو اپنی پرچون کی دکان پر ہوتا ہے تو میٹھا اس کی دکان پر آتا ہے۔
मोटे, अब से मैं बादशाह का मुलाजिम हूँ, चुप करके इस महीने का भत्ता दे। ओ हेलो, मुझसे ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, मुझे पता है आप कोई बादशाह के मुलाजिम नहीं हो। चलो चुप करके यहाँ से निकलो, वरना मैं गाँव वालों को इकट्ठा कर लूँगा। बिट्टू उसे पैसे नहीं देता। मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बादशाह को बिट्टू की सारी बातें बताता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, उसको तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। फिर बादशाह मीठे और अपने वजीर के साथ बिट्टू की दुकान पर आता है। ओ लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बंदे को भत्ता देने से इनकार किया, तुझे अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद करेगा। बादशाह सलामत, मैं इसे बार बार यही बोल रहा था कि मैं बादशाह का नया मुलाजिम हूँ, पर ये यकीन ही नहीं कर रहा था। हाँ मोटे, अब यकीन आ गया। चल शाबाश, चुप करके भत्ता निकाल। बिट्टू फिर भी भत्ता देने से इनकार कर देता है, जिस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने वजीरों से बिट्टू की खूब पिटाई करवाता है और उसकी दुकान बंद करवा देता है। बिट्टू उदास होकर घर आ जाता है। बिट्टू जी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? फिर बिट्टू उन्हें सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बिट्टू बेटा, तू परेशान मत हो, इस जालिम बादशाह को एक दिन जरूर इसके किए की सजा मिलेगी। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादशाह अपने वजीरों को कहता है, मेरे वजीर, मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूँ, मीठा जो पैसे ला कर देता है वो मुझे कम लग रहे हैं। तुम लोग एक काम करो, उस पर नजर रखो। फिर उसके वजीर चले जाते हैं और मीठे के घर छुप जाते हैं। अरे बेगम, तेरा आइडिया क्या कमाल का निकला। इस तरह अगर हम भत्ते के आधे पैसे अपने पास रखेंगे तो एक दिन हम बादशाह से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ मीठे, तो ठीक बोल रहे। वजीर छुपे सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर मीठा वो आधे पैसे लेकर घर से निकलता है और बादशाह के पास आता है। बादशाह सलामत, आज तो मेरी दुकानदार से लड़ाई होते होते बच गई। वो भत्ता ही नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने आपका नाम लिया तो वो थर थर कांपने लगा और चुप करके पैसे निकाल दिए और ये पैसे लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। इतनी देर में वजीर भी आ जाते हैं। बादशाह सलामत, आपका शक बिल्कुल ठीक था, मीठा एक नंबर का फराडिया है। ये आधे पैसे अपने पास रखता है और आधे आपको लाकर देता है। ये बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो मीठे की खूब पिटाई करवाता है और उसे काम से निकाल देता है। मीठा घर आकर नसीबो को सारी बातें बताता है। नसीबो गुस्से में बोलती है, मीठे, ये बादशाह के बच्चे ने तेरी पिटाई करके अच्छा नहीं किया। अब तू देख मैं इसे कैसा मजा चखाती हूँ कि ये याद कर बेगा। पर बेगम, हम बादशाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत ताकतवर और जालिम है। चखा बेंगे, जरूर चखा बेंगे। मीठे, में एक काला जादू करने वाले को जानती हूँ, चल मेरे साथ उसके पास चल। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं और वो काला जादू करने वाले के पास आ जाते हैं। जादूगर साहब, आपके जादू की चर्चा तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आप तो काला जादू करने के बहुत एक्सपर्ट हो। जादूगर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। हाँ बच्चों, मेरे काले जादू के किस्से तो किताबों में छपे हुए हैं। बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम करवाना है। जादूगर साहब, बादशाह ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, उसे सबक सिखाओ। छू छड़क फुड़क, चल बच्चा, उस बादशाह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद करेगा। फिर वो उस जादूगर को लेकर बादशाह के दरबार में जाते हैं तो उसे देखकर सब भाग जाते हैं। बस बादशाह और एक वजीर रह जाता है। जादूगर अपने जादू से बादशाह को गाय और वजीर को तोता बना देता है और उन्हें एक गार में बंद कर देता है और मीठा बादशाह और नसीबो मलका बन जाते हैं। मेरे वजीर, मैं आज तुम्हें हुक्म देता हूँ, गांव में किसी को नहीं छोड़ना, सबसे पैसे वसूल करने हैं। फिर एक दिन बिट्टू अपने घर बैठा होता है। बिट्टू बेटा, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, तू जा और जंगल से लकड़ियाँ काट कर आ। फिर बिट्टू
लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो वो जंगल में चलते चलते उसी गुफा तक पहुंच जाता है जहां बादशाह और वजीर गाय और तोता बनकर कैद थे। बिट्टू गार के अंदर चला जाता है तो उन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर अचानक गाय बोल पड़ती है जिससे बिट्टू की हैरत में इजाफा हो जाता है, लेकिन वो गाय और तोता अपने बारे में कुछ नहीं बताते क्योंकि उन्होंने बिट्टू पर जुल्म किया था। उन्हें डर था कि वो नुकसान न पहुंचा दे। लड़के, तुम्हारा नाम बिट्टू है और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पर गाय, आप मुझे कैसे जानती हो? मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था, पर एक जादूगर ने हमें ऐसा बना दिया है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। मुझे बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे गांव में बादशाह का दरबार है, उसके बाहर एक कुआं है, उसमें एक जादुई लाठी है, वो ले आओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। पर गाय, वो लाठी वहाँ किसने रखी और आप उस लाठी का क्या करोगे? तुम बस वो लाठी ले आओ, आगे की बातें तुम्हें पता चल जाएंगी, क्योंकि हम इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते, अगर निकले तो जल जाएंगे। बिट्टू हामी भर लेता है और वो लाठी लेने के लिए चला जाता है तो देखता है कि मीठा बादशाह बना हुआ है। बिट्टू ये देखकर हैरान हो जाता है। मीठा तो बादशाह का वजीर था, बादशाह कैसे बन गया और बादशाह सलामत कहाँ पर है? बिट्टू डर कर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि बादशाह गायब है और मीठा वजीर अब बादशाह बना हुआ है। छम्मो भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। पर बिट्टू, अब हम क्या कर सकते हैं? फिर बिट्टू गुफा में कैद गाय की सारी बातें बताता है। फिर तो बिट्टू, आपको उस गाय की मदद करनी चाहिए, जैसे उसने कहा है आप वैसा ही करो। हाँ बेगम, मैं आज रात ही कुएं पर जाकर वो लाठी निकाल लाऊंगा। फिर रात होती है। बिट्टू उस कुएं पर आ जाता है और उसके अंदर चला जाता है। वो वहाँ से लाठी उठाकर उस गुफा के अंदर आ जाता है। लाठी देखकर गाय और तोता बहुत खुश हो जाते हैं। बिट्टू, शुक्र है तुम लाठी ले आए हो, अब तुम ये लाठी मुझे मारो। बिट्टू जैसे ही वो लाठी मारता है तो वो गाय बादशाह बन जाती है। बिट्टू बहुत खुश हो जाता है। फिर बादशाह उसे सारी बात बताता है जिसे बिट्टू हैरत से खड़ा सुन रहा होता है। बादशाह सलामत, ये लाठी मुझे भी मारो ताकि मैं अपनी असली हालत में आ जाऊं। फिर बिट्टू तोते को लाठी मारता है तो वो वजीर बन जाता है। बादशाह बिट्टू से माफी मांगता है और वो मीठे से इंतकाम लेने का प्लान बनाते हैं। फिर बादशाह अपने पुरखों की लाठी से जादूगर मीठे और नसीबों को बंदर बना देता है और उन्हें उसी गुफा में कैद कर देता है। और फिर बादशाह और वजीर सब गांव वालों से माफी मांगते हैं। बादशाह अब बहुत रहमदिल इंसान बन जाता है।